صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ اس ایوان کو اپنی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اس ایوان اور حکومت کی یک طرفہ پالیسیاں وفاق پر شدید دباؤ کا باعث بن رہی ہیں۔ وفاقی اکائیوں کی شدید مخالفت کے باوجود دریائے سندھ کے نظام سے مزید نہریں نکالنے کا یک طرفہ فیصلہ ہے۔ اس تجویز کی بطور صدر میں حمایت نہیں کر سکتا۔ حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس تجویز کو ترک کرے۔ Pakistan happy for me. For me, Pakistan always comes first. It is therefore my constitutional duty as a president, my personal obligation as a patriotic Pakistani to caution the House and the government some of the unilateral policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River, sitting despite strong opposition from federating units. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس صدر مملکت کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، نعرے بازی۔ صدر مملکت کا مسکرا کر جواب، اپوزیشن ارکان کی نشستوں پر کھڑے ہو کر نعرے بازی، پلے کارڈز اٹھا لیے۔ اسپیکر گیلری میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی نشست خالی رہی۔ Putting the country on a positive path to economic growth, our foreign exchange reserves have witnessed a surge. As we embark وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پارلیمنٹ میں میڈیا سے گفتگو، کہتی ہیں کہ اپوزیشن نے بدتہذیبی اور بدتمیزی کی حدوں کو پار کر دیا۔ بدتہذیبی کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے اور اس کا اب وہ خود نشانہ بن رہے۔ بولی کہ اس بدتہذیبی اور بدتہذیبی نے کچھ نہیں دیا، لوگوں میں شعور آ گیا ہے اور لوگوں کو ترقی چاہیے، لوگوں کو مسائل کا حل چاہیے، لوگوں کو مہنگائی میں کمی چاہیے۔ اب اکانومی بہتر ہو رہی ہے، حالات بہتر ہو رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ بدتمیزی، بدتہذیبی اور خدمت میں کیا فرق ہے۔ آنیسٹلی یہ فیل کرتی ہوں کہ یہ بدتمیزی کی، بد تہذیبی کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے اور اس کا نشانہ اب یہ خود بن رہے ہیں۔ یہ ایک ڈائنگ چیز ہے جو ختم ہو رہی ہے اور جلدی ختم ہو جائے گی، اور پھر اس نے اپنی جو لائف سائیکل ہے وہ پوری کر لی، کیونکہ لوگوں میں شعور آ گیا۔ لوگ اس بد تہذیبی اور بدتمیزی نے لوگوں کو کچھ نہیں دیا۔ لوگوں کو ترقی چاہیے، لوگوں کو اپنے مسائل کا حل چاہیے، لوگوں کو مہنگائی میں کمی چاہیے، اور اب جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی امپروو کر رہی ہے، حالات امپروو کر رہے ہیں، تو ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ بدتمیزی، بد تہذیبی اور خدمت میں کیا فرق ہے۔ آصف علی زرداری مشترکہ اجلاس سے 8ویں بار خطاب کرنے والے پہلے صدر بن گئے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ صدر مملکت نے خطاب میں حکومت کی معاشی پالیسیوں پر روشنی ڈالی۔ صدر مملکت نے حکومت کو درپیش چیلنجز کا احاطہ کیا۔ بدقسمتی سے اپوزیشن کا رویہ غیر سنجیدہ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ لگتا ہے کہ اپوزیشن کو عوامی مسائل میں کوئی دلچسپی نہیں۔ صدر زرداری نے اپنا تاریخی خطاب کیا ہے، پہلی صدر ہے ہمارا تاریخ میں جس نے آخری بار پارلیمان سے خطاب کیا، اور اس تقریب میں سمجھتا ہوں کہ جہاں صدر صاحب نے جو حکومت نے معیشت کے حوالے سے امپرومنٹس کیے ہیں اس کا بھی ذکر کیا، اس کا بھی تعریف کیا۔ جہاں جہاں مسائل ہیں صدر صاحب نے ان کے نشاندہی کیے ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہمارا اپوزیشن کے دوست ہیں پارلیمان میں وہ بالکل ہی غیر سنجیدہ ہے، اور ان کے انداز سے یہ لگتا ہے کہ نہ عوام کے مسائل سے کوئی دلچسپی ہے، نہ ان کا حل نکالنے کا ان کا کوئی ترجیح ہے، اور وہ صرف اپنا سیاست چمکانا چاہ رہا ہے، مگر ان کا شور ہوتا رہا اور صدر زرداری نے تعریف۔ آپ کو بتائیں کہ میو ہسپتال لاہور میں انجیکشن ریئیکشن سے 2 مریضوں کی ہلاکتوں کا ذمہ دار کون؟ صوبائی حکومت اور ہسپتال انتظامیہ ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ ایم ایس میو ہسپتال کا کہنا ہے کہ مبینہ غیر معیاری انجیکشن کی خریداری ڈی جی ہیلتھ آفس نے کی۔ وزیر صحت پنجاب سلمان رفیق نے کہا میو ہسپتال میں دوائیوں کے لیے بجٹ دے دیا ہے، اور اے بی این نیوز کی تحقیق کے مطابق انجیکشن کو غلط پانی کے ساتھ مکس کر کے اس کی وجہ سے ریئیکشن ہوا۔ میو ہسپتال انجیکشن ریئیکشن میں ہسپتال عملے کی غفلت کا انکشاف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، انجیکشن کا استعمال روک دیا گیا، تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم۔ ذرائع کے مطابق میو ہسپتال لاہور میں عملے نے پاؤڈر انجیکشن کو مکس کرنے کے لیے غلط پانی کا استعمال کیا۔
रेंगर लैक्टेट और कैल्शियम ग्लूकोनेट इस्तेमाल से रिएक्शन हुआ। इस्तेमाल से पहले इंजेक्शन की ड्रग टेस्ट क्लियर था। 4 लाख टीकों के बैच में से 6000 इंजेक्शन में अस्पताल में सप्लाई हुए। शहर भर में कोई रिएक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ। MS डॉक्टर एहतशामुल हक ने अस्पताल अमले की गफलत की तरदीद कर दी। कहा मुबैना गैर मेयारी इंजेक्शन की खरीदारी अस्पताल ने नहीं, DG हेल्थ ऑफिस ने की। म्यू अस्पताल में मज़कूरा इंजेक्शन की तीसरी डोज लगाने के बाद रिएक्शन सामने आया। तहकीकात के लिए लीड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भिजवा दिया गया है। उसमें ये है कि जो इंजेक्शन है उसका वाटर है, कोई ड्रिप सेट है, ये सारा वो सील करके लिए गए। जो कमेटी है तो ये कोई ह्यूमन एरर तो नहीं है, उसको हम सॉल्व। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि म्यू अस्पताल वाकया बहुत अफसोसनाक है। अस्पताल में दवाइयों के लिए बजट दिया गया, गफलत करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। जो वाटर था इंजेक्शन में यूज होने वाला, उस सबको हमने जब्त किया। उस सारे को टेस्ट रन पे हम लगा रहे हैं, कमेटी से हमने बना दी है। इंजेक्शन मामले के लिए तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। प्रोफेसर इसरारुल हक कमेटी के सरबराह, चीफ फार्मासिस्ट, डेप्टी नर्सिंग, AMS अस्पताल कमेटी में शामिल हैं। म्यू अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीज जाँ बहक हुए, 14 मुतासिर हुए थे, जिनमें से 3 वेंटिलेटर्स पर हैं। किसी भी हालात में सिविलियंस को इतने बड़े पैमाने पर फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया जा सकता। लाहौर बार एसोसिएशन के वकील हामिद खान ने सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल को गैर आइनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच में अपने दलाइल में कहा कि फौज एग्जेक्टिव का हिस्सा है जो अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल मंदुखियाल बोले कि तनासु ये नहीं कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल किया जाए या नहीं, मसला ये है कि आर्मी एक्ट के मातहत जराइम अगर सिविलियंस करें तो क्या होगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान वकील हामिद खान बोले, फौजी अदालतें आईनी तरमीम के बगैर कायम नहीं हो सकती। फौजी अदालतों के हवाले से आईनी तरमीम मखसूस मुद्दत के लिए हो सकती है। इस सूरत में फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील का हक भी दिया जाना जरूरी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि 26वीं तरमीम के बाद फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील कहाँ हो सकती है, जिस पर हामिद खान ने जवाब दिया कि हाई कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है, मगर इसका दायरा इख्तियार महदूद होता है। हामिद खान ने कहा कि आर्मी एक्ट को एक तरफ रखें तो आइन में फौजी अदालतों की गुंजाइश नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखियाल ने रिमार्क्स दिए कि तनाज़ा ये नहीं कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल किया जाए या नहीं, मसला ये है कि आर्मी एक्ट के मातहत जराइम अगर सिविलियंस करें तो क्या होगा। हामिद खान ने कहा कि आर्मी एक्ट में शामिल वो शिकें जिनके तहत सिविलियन का ट्रायल किया जाता है वो गैर आइनी है। जस्टिस जमाल मंदुखियाल ने इस्तफसार किया कि आर्टिकल 175(3) के तहत अदलिया एग्जेक्टिव से खुद ब खुद अलग तस्वुर होगी। हामिद खान ने जवाब दिया कि आइन के अल्फाज वाज़े हैं, पार्लिमान के डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि फौजी अदालतें मुतवाज़ी अदालत निज़ाम हैं। इस मामले में आर्टिकल 175(3) को वाज़े होना होगा। हामिद खान ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अगली समाअत में वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस जवाब दलाइल देंगे। तोशाखाना 2 केस में अडियाला जेल में कल होने वाली समाअत मनसूख कर दी गई। अदालती अमले ने बानी PTI के वकील खालिद यूसुफ चौधरी को कल अडियाला जेल में समाअत मनसूखी के बारे में आगाह कर दिया। बानी PTI के वकील के मुताबिक तोशाखाना केस में तेजी से ट्रायल चलाया गया। अब बानी PTI से मुलाकात रोकने के लिए ट्रायल को रुकवाया जा रहा है। अगली तारीख समाअत कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स से बताई जाएगी। वफाकी वजीर अवैस लगारी ने दावा किया है कि 6 साल में गर्दिशी कर्जे खत्म कर देंगे। इस वक्त गर्दिशी कर्जा 2400 अरब रुपए है। वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि 1200 अरब का गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए बैंकों से बातचीत चल रही है। IMF ने बिजली बिलों में सेल्स टैक्स खत्म करने की हुकूमती तजवीज़ को मुस्तरद नहीं किया। उनके साथ मीटिंग अच्छी रही। कौमी सतह पर कोई यकसा तालीमी निज़ाम मौजूद न होने के बायस दीनी मदारिस बगैर किसी कानूनी निगरानी अपनी पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बगैर दाढ़ी इम्तिहान में बैठने की इजाज़त न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी। मज़ीद तफसीलात इब्राहिम अब्बासी की रिपोर्ट में। वफाकुल मदारिस की पॉलिसी के तहत बगैर दाढ़ी इम्तिहान में बैठने की इजाज़त न मिलने के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसला जारी कर दिया। सेक्रेटरी तालीम को 6 बाब मदारिस को रेगुलेट करने के लिए वफाकी हुकूमत को कानून साजी की तजवीज़ भेजने और जवाबित बनाने का हुक्म दे दिया। फैसले में कहा गया कि DG मजहबी तालीम और वजारत तालीम मदारिस के लिए कवायद जवाबित बनाने में नाकाम रहे। दीनी मदारिस के तालीमी मेयार, असातिज़ा की काबिलियत, निसाब, दाखिले और इम्तिहानी निज़ाम से मुताल्लिक उसूल जवाबित तय करने की हिदायत। ऐसा महसूस होता है कि
हुकूमत ने इस मामले को सियासी हिकमत अमली के तहत इल्तिवा में रखा। फैसले में मजीद कहा गया कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन और उनके तालीमी मेयार को यकीनी बनाने के लिए कानून, तिब, इंजीनियरिंग और नर्सिंग की तरह का कोई कानून ज़ाब्ता मौजूद नहीं। दीनी मदारिस से फारिग व तहसील तलबा को मुस्तकबिल में मुश्किलात का सामना हो सकता है। फैसले में कहा गया कि मदारिस की डिग्रियां पाकिस्तान में तस्लीम की जा रही हैं, न बैनुल अक़वामी सतह पर। इदारा किसी मखसूस कानून के तहत रेगुलेट नहीं। दरखास्त गुजार को आइन के आर्टिकल 199 के तहत तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सकता। हुकूमत ने चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम और सारिफीन को रिलीफ फराहम करने के लिए शक्कर दरामद करने का फैसला कर लिया है। शक्कर की दरामद से मकामी सतह पर चीनी की कीमतों में कमी आएगी। शक्कर की दरामद से मुस्तकबिल में चीनी की पैदावार को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। दरामदी शक्कर को मकामी सतह पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील किया जा सकेगा। शक्कर की दरामद के फैसले का मकसद मकामी मंडी में चीनी की कीमतों को कंट्रोल करना है। अमेरिका ने सीनियर पाकिस्तानी सफारतकार को दाखिले से रोक दिया। सफारती ज़राए के मुताबिक सीनियर पाकिस्तानी सफारतकार को अमेरिका में दाखिले की इजाज़त ना मिली। पाकिस्तानी सफारतकार निजी दौरे पर लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पहुंचे थे। अमेरिकी इमिग्रेशन हुकाम ने पाकिस्तानी सफारतकार को रोक दिया। सफारती ज़राए का दावा है कि माजी में तैनाती के दौरान बदउनवानी की शिकायत थी। माजी की शिकायत की बुनियाद पर अमेरिकी हुकाम ने कार्रवाई अमल में लाई। क्या पीटीआई के साथ दोबारा राब्ते हुए हैं? एबीएन न्यूज के सवाल पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि वो कहते हैं कि हम राब्ते कहीं और कर रहे हैं। उनके किसी लीडर का बयान आया था कि हमारे राब्ते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। मुझे नहीं मालूम कि वो राब्ते किस लिए हैं। वो कहते हैं कि हमने एनआरओ भी नहीं करना, डील भी नहीं करनी, कोई रियायत भी नहीं लेनी, तो फिर वो कहाँ और क्या लेना चाहते हैं? जब आपने डील ढील कुछ भी नहीं करना तो आप इस दरवाजे पर क्यों दस्तक देते रहते हैं? वो कहते हैं जी कि हम राब्ते कहीं और कर रहे हैं। उनके किसी लीडर का एक बयान आया था कि हमारे राब्ते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो मुझे नहीं मालूम कि राब्ते किस लिए हैं। वो कहते हैं हमने एनआरओ भी नहीं करना, हमने डील भी नहीं करनी, हमने कोई रियायत भी नहीं लेनी, हम बड़े जरी और बहादुर हैं, हम जेल काटेंगे, हम प्रोसेस के ज़रिए बाहर आएंगे। तो फिर वहाँ क्या लेने जाते हैं? मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जब आपने डील कुछ भी नहीं करना तो आप उस दरवाजे पे क्यों दस्तक देते रहते हैं? उसकी दहलीज से उठते क्यों नहीं आप? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सदर का खिताब अच्छा था, 1 साला प्रोग्राम दिया, हुकूमत अमल करेगी। एहतजाज करना पीटीआई की रिवायत है। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों के इत्तेहादी बनी हुई है। बानी पीटीआई के लगाए गए पौधों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मुसलसल ऑपरेशन हो रहे हैं, कामयाबी भी हो रही है। पार्लियामेंट का पहला पार्लिमानी साल मुकम्मल होने पर मुश्तरका इजलास सदर आसिफ अली जरदारी ने खिताब किया। 1 साल की कामयाबियों और आइंदा खिलाए अमल पर बात की। जाहिदा राव की रिपोर्ट। कौमी असम्बली का पहला पार्लिमानी साल मुकम्मल। इस दौरान 47 कवानीन और 26 करारदादें मंजूर हुई। इस 1 साल के दौरान पार्लियामेंट ने अपनी साख खोई या इसमें इजाफा किया। आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट। इस साल में कुछ ना कुछ हासिल किया हमने। सबसे पहले जो मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था, जो हमारी आउटगोइंग गवर्नमेंट थी, वो शोर डाला हुआ था कि ये श्रीलंका बनने जा रहा है और डिफ़ॉल्ट कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी क़यादत ने, पीएम साहब ने इसे डिफ़ॉल्ट से निकाला है। खातिर खा लेजिस्लेशन नहीं की गई क्योंकि हम मेजॉरिटी में नहीं हैं। हम चीख रहे हैं, हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हम आवाम की नुमाइंदगी करने की अतुलवसा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूँकि हमारा ये अक्सरियत की बुनियाद पे गला घोंटते हैं, बिलों में ये गला घोंटते हैं, तो मुझे ये कहने दीजिए कि ये जो है वो कोई दरख्शान दिल नहीं गुजरा। पाया जो है वो नज़र नहीं आता। मारूजी हालात इज़ टोटली डिफरेंट। और जिस तरह गवर्नमेंट अपने इशारे बता रही है तो वो तो सिर्फ डॉक्यूमेंटेड नज़र आ रहे हैं। तो मुल्क के लिए या आवाम के लिए तो इस पार्लियामेंट ने पिछले साल में तो कुछ भी नहीं किया, और अगर कुछ किया है तो ख़राब किया है, अच्छा कोई नहीं किया। अगले साल भी हमें यही उम्मीद है। इनसे तो कोई खैर की तवक्को मुझे नहीं लगता करनी चाहिए। इस साल तो बहुत कुछ खोया है, पाया तो इतना नहीं है, खोया बहुत कुछ है। तो नया साल के लिए हमारा उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आइंदा साल के लिए बेहतरी होगी। हुकूमती अरकान तो कहते हैं ये 1 साल कामयाबियों का साल था, जबकि अपोजिशन अरकान हुकूमती दावों पर यकीन की बजाय पार्लियामान की बेतुकीरी का रोना रोते दिखाई देते हैं। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ जाहिदा राव, एबीएन न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एबीएन कौम की सोच।